once again, good morning, church, सभी को सुप्रभात। and wishing everyone a happy new year. सभी को नए साल का I'm शुभकामनाएं। sure we all had a lovely start to this new year. हम आशा करते हैं कि आपकी ये साल अच्छी तरीके से शुरुआत हुई हो। Yes, the song which we just heard. जैसे अभी आपने एक गीत सुना, Yes, thank you for the cross. धन्यवाद उस क्रूस के लिए। Yes, let's begin our year by thanking God, आइए हम इस साल को शुरुआत करते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, remembering that He is a faithful God. याद करते हुए कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। So this morning, तो इस सवेरे we have some announcement. कुछ सूचनाएं हैं। We are beginning a Bible college. हम हमारा बाइबल क्लास का शुरुआत कर रहे हैं। We'll soon announce the dates. हम जल्द ही तारीख बताएंगे। But just want to let you know that we have two classes. आपकी सूचना के लिए दो क्लास बता रहे हैं। That on Monday there will be church planting class, सोमवार को चर्च प्लांटिंग क्लास होगा, which will be taught by Pastor Roshan, जो पास्टर रोशन सिखाएंगे। and Friday there will be personal spiritual life, और शुक्रवार को पर्सनल personal spiritual life. और व्यक्तिगत आत्मिक जीवन, So that will be taught by Brother Gunwan. जो गुणवंत भैया सिखाएंगे। So these classes are going to be live, तो ये क्लास जो होगा वो लाइव होगा, and it will be held in our Walip जो MTC. वाली का एमटीसी में होगा। So in case not able to attend these classes, अगर आप कुछ कारण की वजह से इसे नहीं ले पाए क्लास, as we had last time online classes, जैसे पिछली बार ऑनलाइन क्लास था, so we'll be offering online classes. हम ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे। So please register. तो आइए आप रजिस्टर Both कीजिए। the classes will be very good, सारे क्लास जो अच्छा रहेगा। and I think many have not done these classes. ये दोनों क्लास है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया So होगा। you may contact Brother Gunwan, तो आप गुणवंत भैया पे संपर्क कर सकते हैं, and you can register in advance for these classes. उनसे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। So I think for the first, I think Swapnil is here in this place for the first time. So let's welcome him. Yeah. स्वप्न हमारे बीच में पहली बार है, उनका स्वागत करेंगे। I mean here in this hall. Yes, he was here. He used to come there in Evershan. इस हॉल में वो पहली बार आए हैं। So he told me that even he got a new job. उन्होंने कहा कि उन्हें एक नया जॉब मिला है, So please pray for him. उनके लिए प्रार्थना कीजिए। And also, what else is there today? I think Pastor Nancy can tell. Pastor Nancy is saying I don't know. So it's today Pastor Nancy and Flavia Auntie, they are celebrating their wedding anniversary. I don't know how many years. Maybe more than Bharti's age also. How many years? 38. Oh yeah. So let's at the end you can wait and we can wish them. हम आखिर में उनको बधाई देंगे। So today Pastor is not there आज हमारे बीच में पास्टर नहीं है, because he's preaching in Andheri Church. वो अंधेरी गए हैं। Pray for him उनके लिए प्रार्थना कीजिए, for his message today, उनके वचन जो आज so that करने वाले हैं, people's lives are touched and transformed. ताकि लोगों का जीवन छुए जाए और उनका जीवन बदले जाए। So it's good to begin this year अच्छा है कि इस साल को हम शुरुआत करें just by thanking God for what He has done in our lives. परमेश्वर ने जो चीजें हमारे जीवन में किया है उसको धन्यवाद करते हुए। We have always heard that God has been faithful, हमने सुना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, but at times because of the circumstances, पर कई बार जो परिस्थिति आती है, sometimes we get worried what will happen. हम चिंता करने लगते हैं कि क्या होगा। So let's begin this year तो आइए इस साल का शुरुआत करते हैं fully trusting God पूरी तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, because He is a faithful God. क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर। So let's welcome Brother Gunwan for the offering. आइए गुणवंत भैया का स्वागत करते हैं भेंट के संदेश के लिए। सबको जय मसीह की। ये दान का समय है, तो आप अपना बाइबल निकाल सकते हैं। उस समय हम प्रभु के वचन से देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय, और यहाँ पर जो है सामरी स्त्री की कहानी है ना। और आप लोगों ने बहुत बार इसे पढ़ा भी होगा, इस कहानी को जानते भी होंगे। तो ये एक ऐसी स्त्री है जिसके जीवन में वो संतुष्ट नहीं है ना, और यीशु मसीह उसके साथ वार्तालाप कर रहे है ना। और ये दोनों जो है एक कुएं पे है, और वहाँ पर जो है वो सामरी स्त्री जो है पानी भरने को आई है
है ना, और पानी भरने को आई है, लेकिन यीशु मसीह उसको पहले से जानते थे, है ना, और यीशु मसीह जो है उसके साथ वहाँ पर वार्तालाप कर रहे, बात कर रहे। और 10 पंक्ति में अगर देखेंगे, यहाँ पे कहता है ये वचन, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो इस पंक्ति में जैसे मैं सोच रहा था इस पंक्ति के बारे में कि यीशु मसीह जो है उससे बात कर रहे हैं और कहते हैं कि तू यदि परमेश्वर के वरदान को जानती, है ना, तो क्या करती, तो उसे जो है वो जीवन का जल मांगती। तो आज अगर हम देखेंगे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में संतुष्ट होना चाहते हैं, है ना, और वो बहुत सारी चीज़ें तरीके खोजते हैं अपने जीवन में संतुष्ट होने के लिए। पैसे के द्वारा खोजते हैं, है ना, या जैसे मानो पद हो या जो भी कुछ हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अभी स्वामी स्त्री के बारे में अगर देखेंगे, वो प्रेम के बारे में खोज रही है, उसको जो है संतुष्ट होना है अपने जीवन में। आज मनुष्य जो है अकेलापन महसूस करता है और वो अकेलेपन को जो है दूर करने के लिए जो है किसी और साथी की जरूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे यीशु मसीह से जो वार्तालाप कर रहे हैं और यीशु मसीह जानते हैं कि उस स्त्री को जो है सच्चे परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर ही है उस स्त्री को जो है संतुष्ट कर सकता है। आज इस दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि वो किसी और को संतुष्ट करे या खुद को संतुष्ट कर सके। तो आज अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ही है जो मनुष्य को संतुष्ट कर सकता है। और यहाँ पर जो है यीशु मसीह उसके जीवन की वार्तालाप उसे कहते हैं कि जैसे 18 पंक्ति अगर आप देखेंगे 18 और 19 पंक्ति में, तो वो जो है उसकी हकीकत बताते हैं। एक परमेश्वर ही है जो हमारे बारे में बात कर सकता है, हमारा पास, है ना, भविष्य जो भी है ना, फ्यूचर के बारे में परमेश्वर ही हमें बता सकता है साफ रीति से, कोई और बता नहीं सकता। और यीशु मसीह ने जो है उसका जो पास था और जो वर्तमान था उसको जो है साफ रीति से कहा और उसने जो है मान लिया 19 पंक्ति में कि ये क्या है, परमेश्वर का क्या है, दास है ना, भविष्यवक्ता है। तो इस रीति से उसने मान लिया, लेकिन बाद में यीशु मसीह ने को जो है क्लियर किया और फिर उसने मान लिया कि क्या है, मसाया है ना। मसाया का मतलब होता है कि वो परमेश्वर है ना, वो जो है अभिषेक। मसाया का मतलब होता है अभिषेक, या परमेश्वर का अभिषेक है वो। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इस वार्तालाप को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, याद रखिए इस दुनिया में बहुत सारे लोग खोए हुए हैं। वो अपने आप को जो है बिना परमेश्वर के संतुष्ट करना चाहते हैं, बिना परमेश्वर के स्वर्ग जाना चाहते हैं वो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आप उत्पत्ति किताब 11 अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है वहाँ पर भी लोगों की गलत मकसद था। वो जो है परमेश्वर की तरफ पहुंचना चाहते थे, किसका सहारा लेके, वो जो है बाबुल की मीनार का सहारा लेके जो है परमेश्वर तक पहुंचना चाहते थे। तो आज भी लोग अपने कर्मों के द्वारा, धर्मों के द्वारा वो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पहुंच नहीं सकते हैं। तो तरीका क्या है स्वर्ग जाने का, परमेश्वर के पास मेल मिलाप करने का तरीका कौन है, यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह जो है हमारे लिए जो है आया, उस पर मारा गया सारे मनुष्य जाति के लिए, वो जो है तीसरे दिन जी उठा। और ये बहुत अच्छी बात है, ये हर एक मनुष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमने चख लिया है, उसको जान लिया, इसलिए हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर सामरी स्त्री जानती नहीं थी, है ना, लेकिन जब उसने जान लिया, उसने विश्वास किया। तो कोई समझाने वाला होना चाहिए, कोई जो है प्रभु के बारे में बताने वाला होना चाहिए। तो आज हम जानते हैं कलीसिया जो है, अपनी कलीसिया जो क्या करती है, सुसमाचार को लेके जाती है ना, जो मिशनरियों को तैयार करते हैं, मिशनरियों को मिशन फील्ड में भेजती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है सुसमाचार बांटना, कलीसिया को बढ़ाना, मिशनरियों को भेजना, लेकिन मिशनरियों की भी जरूरत होती है। तो ये कौन पूरी कर सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स परमेश्वर देता है, लेकिन वो कलीसिया के द्वारा परमेश्वर जो है देना चाहता है। तो कलीसिया की हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी हम दान लेके आते हैं, दशवांश लेके आते हैं, फेथ मिशन लेके आते हैं, है ना, वो जो है हम लेके आते हैं। तो हम क्या होता है, कलीसिया में जो है जब डालते हैं तो परमेश्वर उसके द्वारा मिशनरियों की जरूरत पूरी करता है। और वो मिशनरी जो है अलग अलग जगहों पे जाके क्या करते हैं, सुसमाचार को लेके जाते हैं, प्रचार करते हैं। तो कहने का मतलब कि जैसे सामरी स्त्री जो है संतुष्ट होना चाहती थी, वो प्रेम में खोज कर रही थी, लेकिन वो संसारिक प्रेम ने, उसे मनुष्य के प्रेम ने उसको संतुष्ट नहीं किया। तो परमेश्वर का प्रेम जब उसको मिला तो उस प्रेम ने उसको संतुष्ट किया। तो इसीलिए जब हम देखते गलातियों का 5 में, है ना, और 22 में,
प्रेम जो है पवित्र आत्मा का क्या है, फल है। और जब पवित्र आत्मा जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, वो पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है और उसी समय वो फल हमारे अंदर काम करना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्त्री बाद में कभी प्रेम के लिए जो है तरसी नहीं, वो उसने जीवन में अकेलापन भी महसूस नहीं किया हुआ, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम ने उसको क्या किया, संतुष्ट किया। और इसलिए रोमियो का 8 में बोलता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है ना, कोई अलग नहीं कर सकता है। तो सामरी स्त्री को परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर पाया, और आज एक कलीसिया होने के नाते हमें भी परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। तो हम परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित है, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे। तो आप देख सकते हैं कि इस कलीसिया के बाहर जाके बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम को खोज रहे, परमेश्वर के प्रेम के प्यासे हैं। क्या हम वो प्रेम उनके पास लेके जा सकते हैं, है ना। तो आइए प्रार्थना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं गॉड, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, धन्यवाद जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु कार्य कर रहे हैं, आपके सुसमाचार को लेके जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद उन मिशनरियों के लिए जो प्रभु मिशन फील्ड में कार्य कर रहे हैं गॉड। धन्यवाद जो सुसमाचार को लेके जा रहे हैं, प्राणों को जीत रहे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में सबसे पहला मिशनरी यीशु मसीह बनकर आया, और उसने जो है प्रभु मिशनरी किस रीति से जीना चाहिए उसने सिखाया गॉड, और वो उसने सुसमाचार के लिए प्रभु सारे मार्ग खोल दिए प्रभु। हम प्रार्थना करते गॉड, कलीसिया होने के नाते हमारे पास जिम्मेदारी है कि सुसमाचार को फैलाना, प्राणों को जीतना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रभु जो सेवा है प्रभु, उसमें हमें प्रभु सहायता करना, मदद करने के लिए धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, जो हमें रोज प्रतिदिन परमेश्वर हमें ताज़ा करता है और विवश करता है प्रभु, आपकी सेवा करने के लिए, आपके कार्य को आगे लेके जाने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के तमाम जरूरतों को प्रभु आप आशीषित करिए, उपाय करिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
few days back, I was traveling in train. कुछ दिनों पहले मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था So these two friends they met in train. और ये दो दोस्त जो है ट्रेन में मिले एक दूसरे से। So this friend asks his friend, where you were so many days not to be seen. और एक दोस्त ने और दूसरे दोस्त से पूछा कि इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? बहुत दिनों से Saying that दिखाई I'm नहीं। here only, but I don't like to travel nowadays in train. मैं यहाँ पर ही हूँ पर मैं ट्रेन से सफ़र करना पसंद नहीं करता। I don't travel. I go by road. I take my car and travel. He said. मैं रोड से सफ़र करता हूँ, मेरी कार लेके जाता हूँ। Because I don't like this crowded trains. मुझे ये भीड़ पसंद नहीं है। Then he started talking like his friend asked what happened suddenly like no that you started traveling in car. और अचानक से क्या हो गया कि आप कार में सफ़र करना शुरू किया? Then he started saying like I was working in so and so company वो कहना शुरू किया कि मैं ऐसे ऐसे कंपनी में काम कर रहा था and I did something wrong over there और मैंने कुछ वहाँ पे गलत कर दिया and he earned lot of money. और मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। So then he asked you were not caught in that company. और उसने उससे पूछा कि क्या आपको पकड़ा नहीं गया उस कार्य के लिए? No, he's saying I switched off my mobile phone और उसने कहा मैंने मोबाइल अपना बंद कर दिया है and he went to another location और दूसरे जगह पर चला गया and slowly they forgot. और धीरे धीरे करके वो भूल गए मानो के। So then like I was just listening to this conversation और मैं उनकी बातचीत को जैसे सुन रहा था like this is the way the world like lives. और इस तरह से संसार जीता है। And finally he said like you're doing so many wrong things in this world. और उसने आखिर में कहा कि तुम इतनी सारी गलत चीज़ें कर रहे हो। Don't you think you're doing wrong? क्या आपको नहीं लगता ये आप गलत कर रहे हो? He's saying I know I'm doing wrong. वो कह रहा था हाँ मैं जानता हूँ मैं गलत कर But रहा not हूँ to worry, one day I will dip in that water और पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उस पानी में डुबकी लगा लूँगा, and all my sins will be cleansed. मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। So this is the way the world like lives. और इस तरह से संसार जीता है। Like even they know that they are doing wrong, वो जानते हैं कि वो ये गलत कर रहे हैं but they do it पर फिर भी वो करते हैं so that they can enjoy that very moment, ताकि वो उस क्षण का आनंद ले सकें। the pleasures of this life. उस जैसे कि कोई अभिलाषाएं जो है उनकी वो जी सके। So today my title of my message is, आज का जो शीर्षक है मेरे संदेश का, do we have that courage to say no? क्या आपके पास वो धीरज है कि आप ना कह सके किसी चीज को? See, one thing we cannot deny, एक चीज तो है कि हम ना नहीं बोल सकते we all live in this world कि हम ये सारे संसार में तो जीते हैं, full of temptation. पूरे प्रलोभन के साथ जीते हैं। I don't think there's anybody here over here यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा who is not tempted sometime or the other. जिसको ऐसे प्रलोभन नहीं आया होगा। But how do we respond during those situations? पर उस क्षण में हम किस तरह से प्रत्युत्तर देते हैं? Many times it has happened in our life too also. हमारे जीवन में भी वो क्षण आए होंगे, Like we may have got tempted हमें वो टेम्पटेशन आया होगा, and प्रलोभन, we must have easily fallen into that temptation. हम उस प्रलोभन में गिरे भी होंगे। So, but we must remember who is giving that offer. पर हमें याद रखना है कि ये जो ऑफर है वो कौन दे रहा है। See, it may be your friend or your colleague, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे सहकर्मी हो सकते but हैं, this temptation offer comes none other than Satan. पर ये जो प्रलोभन है ये और किसी से नहीं पर शैतान की ओर से आता है। So sometimes we know that it is not right, हम जानते हैं कई बार ये कि हमारे लिए सही नहीं है, but somehow we do not have that courage to say no. पर कई बार हमारे अंदर वो धीरज नहीं होता है या वो सामर्थ नहीं होता है कि हम उसे ना कह सकें। And sometimes it becomes even a habit. और कई बार ये हमारी आदत बन जाती है। Like you know it is wrong, आप जानते हो ये गलत है, but since you are doing it regularly, पर आप हर प्रतिदिन करते रहते हो, it becomes a habit in our life. वो हमारे अंदर जैसे कि वो हमारा स्वभाव बन जाता है। But we need to ask God, पर हमें परमेश्वर से पूछना है, like what is your will? आपकी इच्छा क्या है, What is your plan? What should I do? आपकी योजना क्या है, मुझे क्या करना है। So today I am going to speak little bit about one character in the Bible मैं एक चरित्र बाइबल से बताऊंगा, who was in similar situation. वो ऐसी ही परिस्थिति में था। Like his name is Joseph. उसका नाम है यूसुफ। So if you read the book of Genesis, अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ोगे, you will find the story of Joseph. आप उसमें यूसुफ की कहानी पढ़ोगे। So Joseph was like he was a favorite for his father, वो अपना पिताजी का बहुत ही चहेता था
and that's why all his brothers used to hate him. इसलिए उसके सारे भाई जो है उससे नफरत किया करते थे, And because his father liked him so much, क्योंकि उसके पिताजी उससे इतना प्रेम करते थे, the brothers became so jealous of him. वो भाई इतने उससे ईर्ष्या रखते थे, They even planned to kill him. उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि वो उसे मारना चाहते थे, They wanted to kill him, उन्हें उसे मार देना चाहते थे। but one day they took him to kill. और जैसे कि वो वहाँ पे उन्होंने उसे ले लिया, But one of the brothers says, no, let's not kill him, और एक भाई ने कहा कि हम उसे मारते नहीं हैं, but we'll sell him. उसे बेच देते हैं। So as the traders were passing by, जैसे व्यापारी वहाँ से गुजर रहे थे, so Joseph was sold, यूसुफ को वहाँ पे बेचा गया, and finally we see in that story, और हम देखते हैं उस कहानी में he reaches to Potiphar's house. वो उस पोतीफर के घर पे पहुँच जाता है। So here Joseph is sold in Potiphar's house, यहाँ पे यूसुफ को पोतीफर के घर पे बेचा गया है, and there he is given work to take care of the house. और उसे वहाँ पे काम दिया है कि हम उसके घर संभालना है। So Joseph is in charge of that household. यूसुफ उस घर का जैसे कि संभालने वाला बन जाता है, He is taking care of everything, वो सारी चीज़ों को संभालता है घर की, and his master is very happy now. और उसका जो स्वामी था वो बहुत खुश था उससे। But there the Potiphar's wife likes Joseph. और वहाँ पे पोतीफर की पत्नी जो है यूसुफ को पसंद करना शुरू करती है। So here you see that Joseph says, no, I don't want to be friendly with you. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ कहता है कि नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं चाहिए। Imagine if we were like in that place, सोचिए अगर यूसुफ के जगह पर हम होते तो like we could have easily got tempted, हम आसानी से उस प्रलोभन में गिर सकते थे, because we could have got so much like power, authority. हमारे पास कितना सारा सामर्थ्य मिलता था, आधा अधिकार मिलते थे, But Joseph said no, पर यूसुफ ने ना कहा। because when he was saying no, जब वो ना कह रहा था, because he did not wanted to, like he was doing it for God. और वो जानता था कि वो यहाँ पर वो परमेश्वर के लिए नहीं कर रहा है, That he was remembering God. वो that याद time, कर रहा था परमेश्वर को, because by disobeying Potiphar's wife, उस स्त्री को आज्ञा पालन न करते हुए he'll be disobeying God. ऐसा होता था, अगर वो उसकी आज्ञा का पालन करता था तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देता था। So where did like Joseph get this like courage to say no? यहाँ पर यूसुफ के पास वो धीरज कहाँ से आया ना कहने के लिए? He got this courage from God. वो जो है धीरज जो है परमेश्वर की ओर से आया। So same thing like today in our life too, अब उसी तरह से हमारे जीवन में भी we go through so much problems, हम बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं। and Satan is very clever. शैतान बहुत ही चालाक है, He will come in various forms. वो बहुत रूपों में आएगा हमारे सामने। Like if you are going through a financial problem, अगर आप आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, he will come through some offer, वो आपके पास ऐसी चीजें लेके आएगा, like how we heard like in the beginning, जैसे कि शुरुआत में हमने सुना, as though two friends were discussing जैसे वो दो दोस्त बातचीत कर रहे थे that let's do something wrong और गलत चीजें करके and you can earn lot of money. हम गलत तरीके से पैसे कमा सकते हैं। So same thing in our life too, like in financially, और वैसे ही आर्थिक परिस्थितियाँ जब आती है हमारे जीवन में भी, like he will come to you वो आएगा हमारे पास and will give some offer, और वो हमें एक ऑफर देगा, like do this thing. ऐसे करना। Maybe like at times like what happens, we don't think about we think about our future हम कई बार हमारे भविष्य की बारे में नहीं सोचते हैं and we fall into that temptation. और हम उस प्रलोभन में गिर जाते हैं। Like for example, I remember like long back, और जैसे कि मुझे याद है कि बहुत पहले like one of my friend was telling me मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा था that he is doing some kind of like work, वो कुछ तरीके का काम कर रहा था, but it was wrong. वो गलत था, But he was saying no, it's okay, like the whole world does it, और वो ऐसे कह रहा था कि पूरा संसार तो गलत चीजें करता है and you don't have to do anything, just you have to be with me, like help me, और वो कह रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ में ही रहना है and I will do the rest. और मैं बाकी की सारी चीजें संभालूंगा। So he was telling me like you can earn lakhs of rupees, वो मुझे कह रहे थे तुम लाखों में कमा सकते हो, but once you have that conviction, पर जब हमारे अंदर वो विश्वास आता है so it gives us courage like to say no
to such offers. वो विश्वास ही हमें प्रोत्साहन देता है कि हम ये सारी गलत चीज़ों को ना कह सकें। Same thing in our life too. और वैसे उसी तरह से हमारे जीवन में I'm भी sure everyone must have gone through this situation ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरे होंगे, where you have to take that decision. वहाँ पर जहाँ पे आपको वो निर्णय लेना पड़ा होगा। And I'm sure it must have been a very difficult decision. और मैं जानता हूँ कि आपके लिए वो बहुत ही कठिन भी होगा The शायद। same thing happened in Joseph's life too. और उसी तरह से यूसुफ के जीवन में भी हुआ। Because here he was saying no to somebody who is in authority. और यहाँ पर वो ना कह रहा था किसी को जो अधिकार में है। Finally, what happened when he said no to Joseph's wife? और Potiphar's wife. जब उसने वहाँ पे पोतीफर की पत्नी को ना कहा था तो क्या हुआ? She falsely accused Joseph. वो गलत दोष उस पर लगा देती है। And Potiphar put Joseph in prison. और पोतीफर जो है यूसुफ को बंदी गृह में डाल देता है। But Joseph was not worried about whatever will happen to him. और पर यूसुफ इसकी चिंता नहीं कर रहा था कि उसके साथ क्या होगा करके। Because Joseph said, like, I'm not going to disobey my God. पर यूसुफ ने कहा कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। So we see like it will not happen all over like suddenly. ऐसा अचानक से नहीं होगा। Like Potiphar's wife must have planned. पोतीफर की पत्नी ने योजना की होगी। And day after day she must have tempted him. और दिन प्रतिदिन उसने उसके सामने वो प्रलोभन लेके आई होगी। But nothing made difference in Joseph. पर कोई भी फर्क नहीं आया यूसुफ के जीवन में। He had already decided in his mind. उसने पहले ही अपने मन में ठान लिया था That I will say no. मैं ना कहूँगा। So same thing like in our life too. उसी तरह से हमारे जीवन में भी Like we need that courage. हमारे अंदर वो धीरज होने की जरूरत है। What happens like in the world which we live in? और क्या होता है ऐसे संसार में जिसमें हम जी रहे हैं? Our friends give us advice. हमारे दोस्त हमें एडवाइस देते हैं। Like how I spoke about those two friends. जैसे कि मैंने दो दोस्तों के बारे में बताया। Like he would have said that don't worry, you will not get caught. वो कह सकता था कि चिंता मत करो, हम पकड़े नहीं जाएंगे। Or he will give you some like legal solution, you can come out of this problem. या फिर आपको न्याय के हिसाब से कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताएगा कि आप बाहर आ सकते हैं। Like today you must have seen so many scams. जैसे कि हम बहुत सारे घोटाले देखते हैं। People they take money. वो बहुत सारा पैसा लेते हैं। Like from banks. बैंक से। And they leave the country. और वो देश छोड़ के निकल जाते हैं। Because they know like nothing will happen to them. वो जानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनको कुछ नहीं होने वाला है। They do only like to enjoy that very moment. वो ये सारी चीजें उस क्षण का आनंद लेने के लिए ही सिर्फ करते And हैं। they do not think about the future. और वो भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। So why we do today, like why we obey God? क्यों हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? Because we love God. क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। So like there is another story in the Bible. और दूसरी कहानी बाइबल में ऐसी है About David. दाऊद की। So here we see that David. यहाँ पर जो हम देखते हैं कि दाऊद ने Like he falls in like mistake with Bathsheba. वो बादशिबा के साथ गलती में पड़ जाता है। And we see what are the consequences. और वो गलती के कारण हम देखते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है। Here like David could not say no. यहाँ पर दाऊद ना नहीं कह पाया। And because of his mistake. और उसकी गलती की वजह से। Because of his one mistake leads to another mistake. एक गलती उसकी दूसरी गलती को लिए कारण बन जाती है। And because of one mistake, he also thinks like he plans. और एक गलती की वजह से वो योजना बनाता है to kill Bathsheba's husband. और वो बादशिबा के पति को मारने की भी योजना कर देता है। He sends Bathsheba's husband to the battle. और वो बादशिबा के पति को जो है वो युद्ध में भेजता है। So that he can be in front. ताकि वो आगे रह सके। And he will be killed in the war. और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाए। So we see like when we do not say no. हम देखते हैं कि जब हम ना नहीं कहते किसी चीज को, it leads to another problem. वो दूसरी समस्याओं को उत्पन्न करता है। And same thing happened in David's life too. और उसी तरह से दाऊद के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। And it will happen in our life too when we do not say no to sin. हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है जब हम किसी चीज को ना नहीं करते जो पाप से जुड़ा होता है। Many times like we do not want to ask this question. कई बार हम ये प्रश्न पूछना पसंद नहीं करते हैं। Or many times we are not even aware. कई बार हम इसकी जानकारी भी नहीं रखते हैं। That
every sin that we do has consequences. हर एक पाप या हर एक गलती जब हम करते हैं उसके कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं। Like for example, yes, our God is a forgiving God. हाँ, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है, He forgives us. वो हमें क्षमा करता है, But there are consequences which we have to face पर हमेशा उसके परिणाम रहते ही है जिसका हमें सामना करना पड़ता है because of our sins. हमारे पापों की वजह से। So that's why we need to be very careful. इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है। Though we may get satisfaction in that very moment, उस समय के लिए हमें कुछ बहुत अच्छा लगेगा, उस कुछ क्षणों के लिए उस but समय, let's remember that every sin has a consequence. पर हमेशा याद रखिए हर एक पापों के परिणाम जरूर होते हैं। So let's not be like in a hurry to say yes. और इसलिए जल्दबाजी में हम सभी चीज़ों को हाँ नहीं कहें, Let's take our time, इसलिए समय लीजिए, and God will give you that courage. परमेश्वर आपको वो बल देगा। In Isaiah chapter 41 verse 10, यशायाह का 41:10 में I'll just read it for you. हम यहाँ पे पढ़ेंगे, It says that do not fear, डरना मत I am with you. क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। Do not anxiously look about you, इधर उधर मत ताको, I am your God. क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। I will strengthen you, मैं तुम्हें बल दूंगा, surely I will help you. निश्चित ही मैं तुम्हें मदद करूंगा, Surely I will uphold you निश्चित ही मैं तुम्हें संभालूंगा with my righteous right hand. मेरे दाहिने हाथ से। So today, I'd like to speak little bit, अगर मैं थोड़े से समय के लिए अगर बात करूं, like in 10 ways, like about 10 ways, 10 तरीके जैसे like God gives us courage to say no. परमेश्वर हमें वो बल देता है ना बोलने के लिए। Like number one, पहले बार God gives us courage to say no through His presence. परमेश्वर ना बोलने के सामर्थ्य बल देता है उसकी उपस्थिति के द्वारा। In the story of Joseph which we read, यूसुफ की कहानी जहाँ पर हमने पढ़ी, that it says in Genesis chapter 39 verse 2, उत्पत्ति के अध्याय 32 में, 39 में और 2 में, that the Lord was with Joseph. और परमेश्वर यूसुफ के संग था। So here it's trying to say like that Lord was in Joseph even during the difficult situation. परमेश्वर यूसुफ के साथ था कठिन परिस्थितियों में भी। When Joseph was sold as a slave by his brothers, जब यूसुफ के भाइयों ने उसे बेचा, and he was thrown into a pit, जब उसे उस गड्ढे में डाला गया, even in that pit God was there. उस समय में भी परमेश्वर उसके संग था। When he was sold as a slave to Potiphar's house, और जब उसे एक दास के समान बेचा गया पॉतिफर के घर पर, Lord was with Joseph. परमेश्वर उसके संग था। So we see that God does not leave us हम देखते हैं परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है, even during our dark times. हमारे गहरे अंधकार में भी। So that gives us strength, वो हमें बल देता है, like to be firm, to be strong in any situation we are. ये हमें बल देगा हर एक परिस्थिति में दृढ़ता से खड़े रहने के लिए। The second way, like God gives us courage to say no, दूसरी तरीका जो है, when we have a clear understanding of the word. जब हमें सही तरीके से परमेश्वर के वचन को हम समझते हैं। In Psalm 119 verse 11, भजन संहिता 119 और 11वीं पंक्ति में कहा है, it says that I have hidden your word in my heart, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है, so that ताकि I might not sin. मैं पाप ना कर सकूं। So here we say like we have to hide His word in our heart. यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर के वचनों को हमारे हृदय में हमें छुपा लेना है। जैसे कि Here it's saying like when we are like in the word, जब हम वचन में रहते हैं, the word gives us strength to face any situation. वचन ही है जो हमें बल देते हैं हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए। As we have heard in the past messages, जैसे हमने बहुत संदेशों में सुना होगा, like when Satan came to tempt Jesus, जब शैतान यीशु मसीह को प्रलोभन लेके आया, Jesus did not fight with any weapons. यीशु मसीह ने लड़ाई किसी हथियार से नहीं की, Only He spoke the word. उन्होंने सिर्फ अपने वचन कहे। The same thing today in our life too. उसी तरह से हमारे जीवन में भी When we are strong in word, जब हम वचन में मजबूत होते हैं, we can face any situation. हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। Third way, like God gives us courage to say no. तीसरी तरीका जो है, परमेश्वर हमें ना कहने के लिए बल देता है, When we have the fear of the Lord. जब हमारे पास परमेश्वर का भय होता है।
Like as I said in the start, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, those two friends did not like one friend did not have fear of the Lord. एक दोस्त जो था वहाँ पे हमने देखा उसको परमेश्वर का भय बिल्कुल भी नहीं था। That's why for him sin was okay. उसके लिए इसलिए पाप जो है ठीक था करना। But today we have the fear of the Lord. पर आज हमारे पास परमेश्वर का भय है। So, and in Proverbs 9:10 it says, नीति वचन का 9:10 कहता है, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय जो है बुद्धि की शुरुआत है। So we in the story we see about Joseph. जैसे कहानी हमने यूसुफ की सुनी, When he said no to Potiphar's wife, जब उसने ना कहा पोतीफर की पत्नी को, Joseph was not afraid of Potiphar's wife वो भयभीत नहीं था उसकी पत्नी से, because of the power उसके सामर्थ के कारण that he will be put in prison, कि वो मुझे बंदीगृह में डाल देगा, but he feared dishonoring God. और उसने उस चीज का भय रखा कि परमेश्वर को मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। The same thing in our life too. उसी तरह से हमारे जीवन में भी We do not have to fear about this world, हमें संसार से भयभीत नहीं होना है। what our friends will say, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, what our colleagues will say. हमारे सहकर्मी क्या कहेंगे। Let's have the fear of the Lord. परमेश्वर का भय होना जरूरी है। And the fourth way, like through spiritual discernment, और चौथा जो है विवेक जो है आत्मिकता में, like God gives us wisdom परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, to flee from this dangerous situation. परमेश्वर हमें बुद्धि देता है कि ये सारी परिस्थितियों से हम दूर कैसे रह सकें। In the story we see, हम इस कहानी में जैसे कि देखते हैं, like when Joseph was in a difficult situation, जब यूसुफ को परिस्थिति में था कठिन, what did he do? वो उसने क्या किया, He flee from there. He went away from that place. उसने उस जगह को छोड़ दिया, He जैसे कि flee from Potiphar's wife. वो उससे दूर भाग गया। Same thing like when we are in a situation like this. और अगर हम उस तरह की परिस्थिति में हो, Like for example, if somebody who has a habit of eating out, और जैसे कि किसी को बाहर खाना खाने की आदत है, and if doctor has said no, not to eat this particular food, अगर डॉक्टर ने कहा है कि ये खाना आपको नहीं खाना है, maybe this food is unhealthy, आपके लिए ये खाना हानिकारक है, and you cannot go to that place where they serve that food आप उस जगह पे मत जाइए कि जहाँ पे ये खाना परोसा जाए, and say I will pray कि आप कहोगे कि मैं प्रार्थना करूँगा, that God give me strength to resist that temptation. मुझे सामर्थ्य देगा कि मैं उससे दूर रहूँ। You will like one day it will be okay, एक दिन ठीक होगा, maybe second day it will be okay, दूसरा दिन भी ठीक होगा, and finally you will get tempted to eat that food. पर तीसरे दिन शायद से आपको वो प्रलोभन होगा So कि आप खाओगे sometimes like वो खाना। it's not necessary we have to pray. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रार्थना ही है, We have to just flee from that situation. हमें उस जगह से भागना भी जरूरी The है। same thing like in Joseph's life, उसी तरह से यूसुफ के जीवन में भी like each one we have got a spiritual discernment. हमारे अंदर विवेक है आत्मिकता में। We know that it is wrong, हम जानते हैं वो गलत है, but we do it so that we can enjoy that very moment. हम करते हैं क्योंकि उस क्षण में हम उसका आनंद लेना And चाहते we do हैं। not ask for spiritual discernment in that हम moment. आत्मिक विवेक के लिए पूछते भी नहीं है परमेश्वर से। And the fifth one is through our past experience. और पांचवा जो है हमारा भूतकाल में जो हमारा अनुभव रहा है। Joseph had seen God's faithfulness. पर यूसुफ ने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा था। Like later on we see that God made him the prime minister of Egypt. आखिर में हम देखते हैं कि यूसुफ को मिस्र का जैसे प्रधानमंत्री बनाया गया। But when Joseph remembered his past, और पर यूसुफ ने जब अपने पिछले जीवन को देखा था, like how his brothers had treated him, किस तरह से उसके भाइयों ने उसके साथ व्यवहार किया, he was sold as a slave, उसे बेचा गया था, and he had to go through such difficult times in his और life. उसे बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। So through his past experience, उसके वो जो पास में जो भी उसका अनुभव रहा, Joseph had seen that God had been faithful. उसने देखा कि परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा है। And same thing in our life too. उसी तरह से हमारे जीवन में भी Through our past experience, हम हमारे भूतकाल से समझ सकते हैं। when we think of what God has done in our lives, हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, God gives us courage परमेश्वर हमें वो प्रोत्साहन देता है, बल देता है to say no during those times of temptation. हम ना कह सके उस प्रलोभन के समय में। And also like through accountability. हम जैसे एक दूसरे की अधीनता में जब रहते हैं, Like for example, God has today placed
like pastor उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने पास्टरों को नियुक्त किया गया है and other men of God, leaders, और अगुओं को नियुक्त किया गया so है that we can be accountable. ताकि हम उनके अकाउंटेबल ठहराए जा सके। So we need like to be like we should not say like I know everything हम ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ पता है and I don't need anybody in my life. और मुझे किसी की जरूरत नहीं है मेरे So जीवन में। accountability is very important. किसी के साथ बने रहकर उसे उत्तरदायित्व रखना जरूरी होता So है। even in Joseph's life we see और उसी तरह से हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में that he was accountable to God. कि वो हर एक चीजों को करने के लिए अकाउंटेबल था उसके जीवन में। And that's why we see like there was progress in Joseph's life. इसलिए हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में हमेशा बढ़ोतरी थी And we get courage to say no और हमारे पास वो बल आता है ना कहने के लिए to the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई में। In Joseph's life also we can see that God was Holy Spirit was clearly guiding Joseph. हम देख रहे थे कि पवित्र आत्मा यूसुफ की अगुवाई कर रही थी और कह रही थी ना कहने के लिए। The Bible says in Galatians 5 verse 16 गलातियों के 5:16 में कहा है that who gives us power to resist temptation. और कौन हमें वो बल देता है कि शरीर की लालसाओं को ना कहने के In लिए। Galatians 5:16 says that the Holy Spirit empowers us to resist that temptation. पवित्र आत्मा ही है जो हमें बल देती है ये सारी अभिलाषाओं को लालसाओं को ना कहने के लिए। And another way like we can get courage to say no is through prayer. और दूसरा जो है प्रार्थना के द्वारा हम ना कह सकते हैं। What Jesus said in Matthew 26 verse 41 मत्ती का 26:40 में क्या कहा गया है? is saying that Jesus said that watch and pray यीशु मसीह ने कहा ध्यान दो और प्रार्थना करो so that you will not fall into temptation. ताकि आप उस प्रलोभन में ना गिरो। So we see like in a Joseph life too, और वैसे ही हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं he had a prayerful life. उनके पास एक प्रार्थना का जीवन था। His heart was always focused upon God. उनका जो ध्यान था परमेश्वर की ओर केंद्रित था। And same thing like even today, उसी तरह से आज भी like we have seen that prayer can do wonders. हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है वो अद्भुत तरीके से कार्य करती है। That's why we hear in every message. यही हम इसलिए हर एक संदेशों में सुनते हैं। Every message like we begin like with prayer. इसलिए हम हर एक चीजों को प्रार्थना से शुरू करते हैं। Because prayer has the power क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है to change lives. वो जीवन को बदल देता है। And we see that God gives us courage to say no पर हम देखते हैं परमेश्वर हमें वो बल देता है ना कहने के to लिए His plans, to His assurance of plans. और उनकी योजनाओं के द्वारा जो निश्चित ही होंगी। In Jeremiah 29 verse 11, God says, यिर्मयाह के 29:11 में कहा है For I know the plans that I have for you. मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मेरी जो योजनाएं हैं God says, I have plans to prosper you योजनाएं जो आपके भलाई के लिए है and not to harm you. आपके हानि के लिए नहीं Plans to give you a hope आपको आशा देने के लिए है and a future. और भविष्य के लिए है। So, like even in Joseph's life too, उसी तरह से यूसुफ के जीवन में भी he trusted God. उसने प्रभु पर विश्वास किया। Even though he was going through a very bad situation in our life, अगर वो खराब परिस्थितियों से गुजर भी रहा था but he trusted God. उनका विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर पर था। Same thing today in our life too. उसी तरह से हमारे जीवन में भी Even if you are going through a very bad financial situation, अगर आप खराब आर्थिक परिस्थितियों से भी गुजर रहे होंगे or your marriage is not working, या फिर आपका वैवाहिक जीवन उस तरह से नहीं चल रहा होगा or your health condition is not good, या फिर आपकी सेहत वैसे अच्छी ना होगी, the question is, are we trusting God in that situation, सवाल ये है कि आप क्या भरोसा कर रहे हो प्रभु पर or do we draw away from God during that situation, या फिर परमेश्वर से आप दूर हो रहे हो, thinking like, oh God, nothing is working in my life. सोच रहे हो कि कुछ मेरे जीवन में कार्य नहीं हो रहा है, Maybe like God is not listening to my prayer. या फिर परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को विनतियों को नहीं सुन रहा है। And finally, like God gives us courage to say no और आखिर में परमेश्वर हमें बल देता है ना कहने के लिए, through strength in trials. बल देता है कि हम जब परिस्थितियों से चीजों से गुजरते हैं तब। In James chapter 1 याकूब के 1 में verse 2 and 4, 2 और 4 में कहा है,
it says the testing of your faith अब मेरे विश्वास की जो परखना है produces perseverance. वो जो है मेरे अंदर धीरज लेके आता है। What is perseverance? ये जो धीरज मेरे अंदर जो लेके आता है परमेश्वर, Perseverance is something like we will never quit no matter what happens. धीरज ऐसी चीज है जो हमें बल देता है कि हम कभी छोड़ेंगे नहीं। Like we see like Joseph never quitted, हम देखते हैं यूसुफ ने कभी भी छोड़ा नहीं। though it was very easy to quit when we are in difficult times. बहुत ही आसान होता है किसी चीज़ों को छोड़ देना जब परेशानियां या आती है हमारे जीवन But में। when we trust God, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, especially during those difficult times, उस कठिन परिस्थितियों में He is making us more and more stronger. वो हमें बलवान से और बलवान करते रहता है। So every challenge like you are going through, और हर एक चुनौती जो हम जिसका सामना करते हैं, He is making you more and more stronger, वो हमें बलवान से अधिक बलवान बनाया जा so रहा that है, we can face this wicked world which we are living. ताकि हम इस जो संसार है जो पीड़ा से गुजर रहा है उसका सामना कर सके। Yes, the world outside is full of temptation. हाँ, संसार पूरे प्रलोभन से भरा हुआ है। Though like here everything may seem okay right now, यहाँ पर सभी चीजें साधारण सी दिखाई दे रही but है, as soon as you move outside in the world, और जैसे ही हम संसार में कदम रखते हैं we will have a different experience. हमारा दूसरा अनुभव होगा। The people around us, लोग हमारे जो आजू बाजू में हैं, they don't have anything good to offer us. हमारे को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। Their plans are plans of evil. उनकी जो योजना है जो बुराई की है, Though it may feel like it is good, शायद से हमें लगे वो अच्छाई की ओर है, but we need to be very careful. पर हमें ध्यान देना है। And only God gives us that courage हाँ, परमेश्वर ही वो हमें बल देता है, वो धीरज देता है, to say no to. वो हमें बल देता है हम ना कह सके। But thank God, like we have a very loving God, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हमारा प्रेमी परमेश्वर है, like who gives us the strength. और जो हमें वो बल देता है। So like I was remembering like many years back, जैसे कि मैं याद कर रहा था कुछ सालों पहले, like there was a person एक व्यक्ति था, who had a very difficult situation. उसके पास बहुत ही खराब परिस्थिति जैसे कि आ गई थी। Like his marriage was broken, उसकी शादीशुदा जीवन जैसे टूट गया था, wife was staying separate, पत्नी जो है अलग से रह रही थी, and he had completely lost trust in everything. और उनका सभी चीज़ों से जैसे विश्वास उड़ गया था। He asked God like I used to go to church every day, every Sunday he used to go to church, और वो हर रविवार के दिन कलीसिया जाता था, and he was regular in everything. वो हर चीज़ों में भाग लेते थे जैसे कि। Then why like such thing happened to him? तो क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? But like there are some things like we don't know why God does. कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वो क्यों होती है हम नहीं जानते But हैं, when we ask God in prayer, पर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में उस चीज़ों का सवाल He will पूछते हैं, reveal to us. परमेश्वर उसका उत्तर देता है। Because there are something like God wants us to grow. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम उस एरिया में बढ़े। As we have heard जैसे कि हमने सुना, that every sin has a consequences. हर एक पापों का परिणाम होता है, We may not like have the consequences immediately, शायद से उसका परिणाम तुरंत नहीं होगा, but we will have faced the consequences someday or the other in our life. पर किसी ना किसी दिन उसका परिणाम हम जरूर देखेंगे। But God is telling us even today, पर परमेश्वर हमसे आज भी कह रहा है, like come to me मेरे पास आओ and give me all your problems, और मेरे पास सारे आपकी परेशानियां दे दो, and I will give you rest. और मैं आपको विश्राम दूंगा। Like we heard in the story, जैसे हमने कहानी में सुना, like when David was he fell into sin, जब दाऊद उस प्रलोभन में गिरा, पाप में गिरा, he was broken. वो टूट गया था। He was broken such like he went away from God. वो इतना टूट गया था कि परमेश्वर से मानो किससे दूर हो गया था, But God came to him पर परमेश्वर उसके निकट आया and He restored him. और उसे पुनर्स्थापित किया। Even the like on 31st pastor said, और जैसे 31 तारीख को पास्टर ने कहा, like when the vessel is broken, जब एक बर्तन टूटता है, that you can see the light passing through the vessel. और हम उस टूटे हुए जगह से जैसे रोशनी जाते हुए देख सकते हैं, Same thing in our life too. उसी तरह से हमारे जीवन में भी Unless we are broken, जब तक हम टूटते नहीं हैं, God light will not pass from that vessel. परमेश्वर का उजियाला हमारे द्वारा नहीं फैलेगा। So we need to be like broken. इसलिए हमें टूटने की जरूरत है, Then only we will be like humble. तभी हम
हो सकते हैं, Otherwise, we will be proud, like we know everything in life. नहीं तो हम घमंडी बनेंगे कहते हुए कि हम सब कुछ जानते Right हैं। person does not need God एक घमंडी व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत नहीं because होती, he thinks that he has everything in his life. क्योंकि वो समझता है कि उसके जीवन में सब कुछ है। That's why God allows sometimes. इसलिए परमेश्वर उस चीजों की अनुमति देता है। Because when we are broken, जब हम टूटते हैं we will seek Him, तब हम उसकी खोजी करेंगे and God will lift us up. और परमेश्वर हमें उठाएगा। God will say परमेश्वर कहेगा that I will lift you up मैं आपको उठाऊंगा when you fall down. जब आप गिरोगे। And He has done that in our lives. और वैसे ही प्रभु ने हमारे साथ किया है हमारे जीवन में। And it reminds us that He is a faithful God. और वो हमें याद दिलाता है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। So let's remember, like this morning, इसलिए आइए हम याद करते हैं the सुबह points में which we have spoken, ये 10 जो पॉइंट्स हैं हमने जो ये कहे, that it is He who gives us courage to say no. परमेश्वर ही है जो हमें बल देता है ना कहने के लिए। And let's not worry about anything, और किसी चीज की चिंता नहीं करते हैं what others might think. और दूसरे क्या कहेंगे। We do not have to fear about anyone in this world. हमें किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं है संसार Like में। as I was coming up, जैसे मैं ऊपर आ रहा था, I don't know whether you have read or not. आपने पढ़ा है या नहीं मुझे नहीं There is मालूम। a frame over there, वहाँ पे फ्रेम है बाहर and in that over there, like what will happen after you die. और वहाँ पे लिखा है आप मरने के बाद क्या होगा। It's written in Marathi language. वहाँ पे मराठी में लिखा हुआ है। I told Ashish to read. मैंने आशीष को उसे पढ़ने के लिए कहा। It's a very nice thing, like they have written बहुत ही अच्छा लिखा है वहाँ पर। that when you die, जब आप मरोगे everything will be left behind. सब कुछ यहाँ पर छूट जाएगा। Nothing like you will take up in heaven. कोई भी चीज आप स्वर्ग नहीं लेके जाओगे। So that's what like we are living in this world. वैसे ही हम इस संसार में जी रहे We do हैं। not have to worry about what we will have. हमें चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं कि हमारे पास क्या होगा। Doesn't matter even if we are poor, मायने नहीं रखता कि हम गरीब भी क्यों ना हो, we are still rich because God is with us. हम फिर भी धनी हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। So I like to encourage everyone. मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Let's have that courage to say no. वो आप धीरज रखिए कि आप ना कह सके। And whatever temptation may come, आपके सामने कोई भी प्रलोभन क्यों ना आए, God will give us this. परमेश्वर आपको सहायता मदद करेगा। Amen. Amen. Let's pray. Father God, we want to thank you, Lord, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं for your word, O Lord, आपके वचनों के लिए, for speaking to each one of us, O Lord. हमारे से व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए। Yes, Lord, all that we need in our lives, O Lord, हाँ परमेश्वर, हमारे हर जीवन में लगने वाली जरूरत जो है is only you, O Lord. आप ही हो सकते प्रभु। We are not worried about what will happen about tomorrow, Lord, हम इस चीज़ की चिंता नहीं करते कि कल क्या होगा, because you are there with us today, tomorrow, and forever, O कि Lord. आप हमारे संग हो आज, कल और हमेशा के लिए। Your presence is all that we need in our lives. आपकी उपस्थिति है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है। Though we may feel weak in our bodies today, O Lord, तो हम हमारे शरीर में शायद कमजोर महसूस करें, but it is your strength that we need, O Lord. पर आप ही का बल है जिसे हमें जरूरत है प्रभु। Once again, Lord, we thank you, Lord, for this church, O Lord, इस फिर से हम धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए for प्रभु। every member in this church, O हर Lord. एक यहाँ के सदस्य जो है कलीसिया में, We pray, O Lord, for all our needs, O Lord. हम हमारी सारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते And we हैं। believe, Lord, that you are a provider, Lord. हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप उपाय करने वाले प्रभु। You are a faithful God. आप विश्वास योग्य You परमेश्वर, have provided us in the past, आपने हमारे लिए उपाय करके दिया है and भूतकाल you में, will provide us in the future too, O और Lord. भविष्य में भी आप उपाय करोगे, And there will be no lack in our lives, O और Lord. किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी प्रभु हमारे जीवन में। Lord, once again, Lord, we pray for our church, O Lord. फिर से हमें हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। As we are about to begin our Bible college, O Lord, आज जैसे कि हम बाइबल कॉलेज की शुरुआत करेंगे परमेश्वर, like help us, O Lord, to grow in your word. हमारी सहायता मदद करना कि आपके वचनों में हम बढ़े प्रभु, Because your word gives us strength, O Lord. क्योंकि आपका वचन ही है जो हमें सहायता मदद करता है Face any temptation, O Lord. और किसी भी प्रलोभन का सामना करने के लिए मदद करता है। Thank you, Lord, once again for everything that you are doing in our lives, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर, हर एक चीज़ें जो हमारे जीवन में आप कर रहे हैं, Also, we pray for all our upcoming events, O Lord, और आने वाले सारे कार्यक्रमों के लिए भी प्रार्थना करते हैं that प्रभु। you lead us and guide us, O Lord. आप हमारा मार्गदर्शन करना और सहायता करना प्रभु, Also, pray for a week ahead, O Lord. और हमारे आने वाले सप्ताह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु।
from Monday to Saturday, O Lord. सोमवार से लेकर शनिवार तक That प्रभु each and every moment you be with us, O कि Lord. हर एक क्षण आप हमारे संग रहना प्रभु। Lead us and guide us through your Holy Spirit, O आपकी Lord. पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा मार्गदर्शन करना In प्रभु। Jesus' most precious name. यीशु we मसीह pray. के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Salvation belongs to our God, who sits upon the throne. Closing, just I want to say, आखिर में ये कहना चाहता हूँ, like, yes, we all go through temptations. हाँ हम सभी लोग प्रलोभन से गुजरते But हैं, thank God we have a God पर परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे पास who lifts परमेश्वर us है। up whatever situation we are in. हर एक परिस्थितियों में प्रभु हमें संभाल कर उठा लेता है। Like as I said, like sometimes we may say like, oh God, why you did not stop me? और आप कहोगे कि परमेश्वर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? But God will say, परमेश्वर कहेगा, yes, I was speaking through your conscience. मैं आपके अंदर से बात कर रहा था, I was speaking through the word. मैं आपके वचनों से बातें कर रहा था अपने, I was speaking through godly people. मैं भक्तिपूर्ण लोगों से बातें कर रहा था। But we are so much like we do not in that situation. पर उस परिस्थितियों में ऐसा होता है, We do not want to hear that हम moment. सुनना नहीं चाहते हैं। Yes, we all have made that mistake. हाँ हम सभी ने वो गलतियाँ की We होंगी, all have fallen. हम सभी लोग गिरे होंगे, But God lifts us from that situation. परमेश्वर हमें उठा लेता है उस परिस्थिति Like में। as like David, he was broken जैसे दाऊद जब टूट गया था, and he turned his back उसने अपने आप को जैसे फिरा लिया था and he went far away from God. और जैसे वो दूर हो गया था परमेश्वर But से, God comes to us तब परमेश्वर निकट आता है, and He restored him. वो हमें पुनर्स्थापित करता Same है। way like He has restored us also. उसी तरह से हमें भी पुनर्स्थापित किया है So let's परमेश्वर। like we encourage this week or this year. और इस साल में, इस सप्ताह में प्रोत्साहित होते हैं हम And as लोग। we heard on 31st like from Pastor, जैसे 31 तारीख को हमने पास्टर से सुना था, what we have to do is we need to encourage others. और हमें क्या करना है, तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करना Because है। when we encourage others, जब हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते we हैं ourselves are encouraged. और हम खुद प्रोत्साहित हो जाते हैं, So let's begin this new year और इसलिए हम ये आने वाला साल जो है उसकी शुरुआत in a very different way. अलग ही तरीके से शुरू करते हैं, Surrendering our lives completely to God. हमारे जीवनों को पूरी तरह से प्रभु को देते हुए। Amen. This close. Lord God, we want to thank you, Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं Once again, Lord, for this beautiful time, O Lord. फिर से दोबारा इस समय के लिए प्रभु। Also, we pray, O Lord, for Pastor Nancy and Flavia Auntie, Lord. हम प्रार्थना करते हैं पास्टर नांसी और फ्लाविया आंटी के लिए।
लिए was celebrating 38 years of their marriage, O Lord. और उनके 38 साल जो वैवाहिक जीवन के उसका उत्सव मनाते हुए। Yes, Lord, you have been faithful, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर, आप विश्वास योग्य हो। We pray also for our brother Swapnil, O Lord, हम प्रार्थना करते हैं स्वप्निल के लिए प्रभु, who's celebrating his birthday tomorrow, O Lord. और जो उसका जन्मदिन कल है परमेश्वर, Yes, Lord, bless him too, O Lord. उसको आशीषित करना परमेश्वर। Yes, Lord, this church we pray, O Lord. हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए, Keep us always united in love, O Lord. हमें हमेशा एकता में प्यार में बने रखना परमेश्वर। Thank you, Lord, for जो all फोन that देख you रहे have हो। been doing in our lives, O Lord. धन्यवाद परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए जो आप कर रहे हैं हमारे Also for जीवन में। this year, new year, O Lord. और इस साल दिन के लिए परमेश्वर, Yes, Lord, we have great plans, O Lord. और बहुत सारी योजनाएं हैं परमेश्वर But हमारी। we want your plans to be our plans, O Lord. परमेश्वर पर आपकी योजनाएं हमारी योजनाएं बने, ऐसे हम प्रार्थना Yes, करते Lord, हैं। speak to us and let your will be done in our lives. परमेश्वर हमसे बातें करना और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने देना। Once again, Lord, give us beautiful week ahead. और बहुत ही अच्छा सप्ताह देना आने वाले। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।